Good morning, students. This is class 7th, History, Lesson 6, The Mughal Empire, Part 3rd. As students, a day start with a good thought. So, the thought for the day is success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. हम success से खुश नहीं होते. हम खुश होते हैं तब हमें सक्सेस मिलती है इसलिए मैं कहती हूँ कि इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल जो भी काम करिए मन लगा कर करिए अगर आप स्टूडेंट हैं और मैं एक टीचर हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं मन लगा के पढ़ाऊँ जितना पढ़ाऊँ उतना आपको समझ में आए वैसे ही आप पूरे दिन भले ही मत पढ़िए मगर जितना पढ़िए चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितना घंटा पढ़िए मन लगा के पढ़िए तो आप सक्सेसफुल 101% होंगे इस बात की मैं गारंटी देती हूँ so students, now in this module, we'll discuss about this is part third. We'll discuss about architecture. I've already told you that they have Indo-Islamic architectural style, Akbar's religious policies, then an estimate of Akbar, then his son Jahangir, his campaign and his conquest, then Jahangir and his wife Noor Jahan, then what are his relationships with the Europeans, Shah Jahan, his conquest as well as its campaign, along with that Deccan campaign, Central Asian campaign, many campaigns he has done. Then Kandahar expectation. These are the topics which we'll discuss in our module. And the last one topic, or you can say last module in fourth module, we'll discuss about a new topic will be relationships with the Europeans. As in your book heading architecture is given, as Akbar was a very good builder, so he had made new capital city as Fatehpur Sikri near Agra. He had selected that site for his this capital city because at that place Sufi saint Salim Chishti was living over there, and Akbar gave him a lot of respect, giving me a very high respect as the city was surrounded by walls from three sides and from one side an artificial lake or from the fourth side he had made Fatehpur Sikri. This was the construction of the city which very deliberately means very beautifully he wanted ki he should have Hindu and Muslim both elements in his building like Islamic style also as well as Hindu style. So he has used arches along with Hindu pillars क्योंकि Hindus के टेम्पल से pillars हुआ करते तो उन्होंने सबका दोनों का combination लिया. For that he has used red sandstone with inserted with white marble. The most of the building is a combination of these two architecture, that means Indian style as well as Persian style. So Akbar wanted ki these people or we people should be influenced with art in Indian, Persian as well as Asian style. His buildings were at Agra, Fatehpur Sikri were made up of red sandstone. लाइक हमारा जो ताजमहल सॉरी ताजमहल नहीं सॉरी हमारा रेड फोर्ट है देखिए रेड स्टोन से बना हुआ है इस तरीके से फतेहपुर सिकरी अकबर ने अपनी न्यू कैपिटल सिटी बनाई थी. The following are the buildings which he made at Fatehpur Sikri like Diwane Khas, Diwane Khas for that special people for the Council of Ministers, Diwane for the common people, Panch Mahal, Jodha Bai Palace, Jodha Bai's wife, then Jama Masjid, Buland Darwaza, the tomb of Sheikh Salim. ओके सो बुलंद दरवाजा वॉज एडेड टू अ कॉमरेड जो इन्होंने जब गुजरात के इसमें जब बैटल लड़ी थी जो वो जब जीते थे तब उन्होंने उसके वहाँ पे अपनी मतलब अपनी विक्ट्री के साइन को शो करने के लिए उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था. दिस वॉज दिस हाइएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. As the mausoleum he had made like सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आप जानते ही हो वो वाइट मार्बल और बहुत ही ब्यूटीफुल पर्ल से बनी है. इसके अलावा इबोनी उसमें वर्क कराया गया है. इसके अलावा लोग बहुत सारे लोग जाते हैं उस टॉम्ब को देखने के लिए क्योंकि वो बहुत ही प्यारे मार्बल से बना है बहुत ही ब्यूटीफुल मार्बल से बना हुआ है. एक पिक्चर में अभी आप क्लियर दिख रहा होगा कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने डायग्रामेटिक बनाया था. उन्होंने इसके अलावा और भी सारे टॉम्ब्स बनाए थे लाइक हुमायूं टॉम्ब जो उन्होंने न्यू दिल्ली में बनाया था. इसमें क्या था उन्होंने कहा था एक नॉर्मल जो प्लेटफॉर्म था उससे थोड़ा सा ऊंचा बनाया था और वो चाहते हैं उसमें बहुत सारे डोम्स हो. डोम्स बच्चे क्या होता है गुम्बद जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में देखो तो ये देखिए ये है गुम्बद ये डोम. तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे डोम और आर्चेस बनाए थे. इट हैज़ बीन क्लोज इन द गार्डन और चारों तरफ से गार्डन था जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो तो बच्चा देखिए ये चारों तरफ हमारे गार्डन है और बीच में एक बड़ा सा टोम्ब है और बहुत सारे गेट्स हैं.
तो उन्होंने कहा कि बिगेस्ट गेटवे है, यहाँ पे गार्डन्स बनाए, बहुत बड़ा सा एक मेन गेट बनाया एंट्रेंस के लिए जिसमें कॉमन मुगल टोम्स थे। देन ही हैड प्लान मेनी थिंग्स। देन आपको ये नेक्स्ट पिक्चर भी दिख रही है बच्चा, सिकंदराबाद में उन्होंने एक डिज़ाइन की थी, खुद बनाई थी। उसमें उन्होंने कलर्ड सैंडस्टोन यूज़ किए थे और वाइट मार्बल यूज़ करे थे। इसमें बच्चा देखिए, इसमें गुंबद नहीं है, ये देखिए टोम्ब नहीं है, इसमें डोम एब्सेंट था। देखिए यहाँ गुंबद बना, इसमें डोम नहीं था। एज ही सेड कि अकबर स्टॉर्म जो सिकंदर ने बनाया था वो उन्होंने फाइनलाइज करा था कि वो वहाँ पे वो उन्होंने खुद उसको फाइनलाइज किया था। उन्होंने कहा था इसमें कोई भी डोम नहीं होगा, डोम मतलब गुम्बद जो उसमें सर्कुलर टाइप का नहीं होता वो नहीं होगा। देन अकबर रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी, देखिए अकबर ने एक नया, ऑब्वियसली अब मैं आपको बताऊंगी भी आगे चल के कि अकबर ने अपना एक न्यू रिलीजन लॉन्च किया था। अकबर यूनाइटेड द एम्पायर एज ही वांटेड कि सबके बहुत ही अलग अलग व्यूज़ हैं, तो हमें यूनाइट होके सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सबको इक्वल मतलब सबको सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई से शादी की थी। ही अलाउड टू प्रैक्टिस हिम हिज ओन रिलीजन, क्योंकि वो हिंदू थी तो उन्होंने उनको प्रेशराइज नहीं किया था कि आप मुस्लिम रिचुअल्स फॉलो करें। उन्होंने कहा था कि आप हमारे कोर्ट में रहिए, हमारे साथ रहिए और अपना ही रिलीजन फॉलो किए। ही डिडंट फोर्स हिम टू फॉलो हिज रिलीजन और लीव हर रिलीजन। सो इन 1575 अकबर बिल्ड इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी, जो उन्होंने फिर न्यू कैपिटल बनाई, जहाँ पे वो हमेशा सारे जहाँ वहाँ पे वो जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब वहाँ पे उनको इनवाइट करते थे ताकि वहाँ पे रिलीजियस सब्जेक्ट्स को लेके वहाँ पे डिस्कशन किया जा सके। वहाँ पे हिंदू, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, हर रिलीजन के जो हमारे स्कॉलर्स हुआ करते थे, दे वर जस्ट इन्वाइटेड टू हैव अ गुड डिस्कशन। Akbar wanted कि every religion should have only one point of view, that is we are having only one God. So he told कि it is only one when possible in a peaceful way, when at a single place may all the scholars will sit and have a discussion. So it can be possible. It is the best way for this discussion. After that, Akbar found a new religious path on based on its common truth or the rules, which he normally called as दीने इलाही। एज दीवाने खास इज द प्लेस जहाँ पे उनके ये देखिए बच्चा, दीवाने खास है जहाँ पे उनके सारे स्कॉलर्स बैठते थे। पंचमहल 5 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें ग्राउंड में 84 पिलर्स थे और उसके ऊपर 4 पिलर्स थे। तो इस तरीके से बहुत ही डिफरेंट टाइप की एक बिल्डिंग उन्होंने डिजाइन की थी। बच्चा मैंने अभी आपको बताया उन्होंने एक नया रिलीजन फॉलो किया था जिसको बोला दीन इलाही। उसका मतलब ही ये था कि एक हर रिलीजन जो है सबका एक ही भगवान है। दैट इज नॉट दैट इट वाज नॉट अ न्यू रिलीजन, इट वाज लाइक अ सूफी ऑर्डर। वो चाहते थे कि किसी और, उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया कि आपको दीन इलाही फॉलो करना है। दीन इलाही का मतलब ही यही था कि द रिलीजन ऑफ वन गॉड, हम सब एक ही भगवान से हैं जुड़े हुए। मिनिस्टर राजा राम मान सिंह रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इसको ओपनली, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। तो उन्होंने सिंसियरली उसको फॉलो करा, उनका नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देन दीन इलाही अकबर उसके लिए बहुत स्पिरिचुअल हो गए, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं मैं सिर्फ इन्हीं के नियम फॉलो करूंगा। और उसमें काफ़ी चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ी जैसे कि killing of animals, and he also advised his people and even him also that he will stop eating meat at least for few days in a year. That is during the month of their birth. That means whenever he is born in that month he will not eat meat. Okay, even his people also, he had requested people to not to eat. He himself gave up his eating meat. He was along with that he is told ki I will not give any cruel punishment to any people, like if he has done something wrong also, then he will not be work like as a cruel person. He said कि he also disproved कि हिंदू वुमेन्स जो सती करती हैं वो भी फॉलो गलत है। सती बच्चे क्या होता है, एज फ्यूनरल पायर ऑफ हिज हस्बैंड, जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उन्हीं की डेड बॉडी जो हम लोग जलाते हैं उसके साथ उसी की रियल जो उनकी वाइफ है उनको जिंदा जलाते हैं। तो वो प्रथा उन्होंने कहा नहीं मुझे ये फॉलो नहीं करना है। इसीलिए अकबर ने इंट्रोड्यूस किया कि वर्शिप सन, क्योंकि फायर और लाइट में सारे रिचुअल्स होते हैं। Hope you have understand this much. Then an estimate of Akbar. Akbar died in 1605 AD after ruling India for 50 years, as his period was the best period of the medieval time period, and
he then Akbar ranked with Ashoka, the great emperor, as he was the greatest king in the history. He told he has to follow all the things he told by him. He wants कि everyone should be religious tolerant, मतलब हर religion को respect देनी चाहिए. जैसे हमने बहुत सारे रूलर्स अभी तक पढ़े, बट कोई भी रूलर सब सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं देता था, अपने रिलीजन को सबसे सुपर पोजीशन देता था. बट अकबर का कहना था नहीं, all religions are equal, so we should always have centralized system as well as रिलीजियस टॉलरेंस. हमें सारे रीजन के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ही वॉज एन इलिटरेट मैन. ध्यान रखिएगा बच्चा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल एम्पायर में ऐसा कौन सा एम्पर था जो इलिटरेट था. बच्चा अकबर. अकबर की थिंकिंग थी बच्चा कि हम कानों से ज्यादा समझ सकते हैं कंपेयर टू अवर आइज. अगर हम अपनी आंखों से कम देखें और कानों से ज्यादा सुन तो हम ज्यादा सीख सकते हैं. सो ही सेड कि ही वाज, बट देन आल्सो ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट बुक्स. अपने इसलिए उन्होंने अपने कोर्ट में 9 जेम्स मेंटेन कर रखे ताकि जो उन्हें सारी नॉलेज देते थे. देन जहांगीर आफ्टर दैट ऑफ अकबर, उनके जो सबसे बड़े सन थे सलीम, उन्होंने उनको हरा दिया. तब उन्हें टाइटल दिया गया था नूर उद्दीन जहांगीर, that means conqueror of the world. He was a very good or excellent writer. He had written all his books things in his book namely called as Tuzuki Jahangiri. He was very fascinated, like बाबर की तरह वो भी बहुत ही पैशनेटेड थे. वो चाहते थे कि उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनके कोर्ट्स, उनकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाए, तो उन्होंने सारा चीज़ें उसमें नोट की थी. जहांगीर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ जस्टिस. ही वॉन्ट कि एवरी पर्सन शुड गेट justice. No one is big, no one is poor. Everyone should get justice. So a big bell fixed on the golden chain hung at the gate of the royal palace. किसी को भी कोई इशू होता था तो वो जाके घंटी बजाते ताकि लोगों को पता चल जाता कि इन्हें कुछ प्रॉब्लम है. If anyone pulled the chain, so accorded justice by the emperor, so then in first instant only he will be given the judgment. So these are the golden mohurs which were prepared at his time period. Now these questions are I will ask during my live session. These questions you can go through it as I've given it to you, but discussion will be going on in the live classes. Jahangir campaigns and conquest. The first year of the region was married by the rebellion of his son. उनके जो बेटे थे प्रिंस खुसरो, वो चाहते थे कि उनको सपोर्ट करें कौन, मिनिस्टर राजा मान सिंह. क्यों? क्योंकि उन्होंने जहांगीर को डिफीट कर आए थे लाहौर में, और फिर उन्हें वहां पर उन्होंने जेल में डाल दिया था. इम्प्रिजन नहीं, मतलब अपने साथ उन्होंने बंदी बना लिया था. द सिख गुरु अर्जन देव, उन्होंने उन्हें ब्लेस किया था और बहुत ही हैवीली उनको फाइन पे करने के लिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था. इसके लिए उन्हें इतना टॉर्चर किया कि उनकी डेथ हो गई 1606 में. His next campaign was against the मेवाड़ ruler राणा अमर सिंह. वहाँ पे भी मुगल्स को अच्छे से वर्क, मतलब वो अच्छे से अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे. देन जहांगीर डिफीटेड हिम एंड बिकम द लॉयल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर. देन हिज campaign towards Deccan was also not successful. उसने बाद में जो था हमारी शाहजहां और बहुत सारे रूलर्स ने कैप्चर किया. जहांगीर एंड हिज वाइफ. जहांगीर की वाइफ का नाम था नूरजहां. हर रियल नेम वाज महारुल निजा. वो एक विडो थी. उनके फर्स्ट हस्बैंड जो शेर अफगान थे उनको एनकाउंटर में मार डाला गया था उनको पर अटैक करके. बट वो इतनी ब्यूटीफुल और इतनी टैलेंटेड थी. हर मैटर को अगर आप उनसे डिस्कस करो, चाहे वो गवर्नमेंट हो तो वो हर चीज़ में बेस्ट रिजल्ट बताती थी. वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज शी इज़ हैविंग. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हर. जहांगीर ड्रिंकिंग के बहुत एडिक्टेड थे जिनकी वजह से उनकी हेल्थ को बहुत इफेक्ट होता था एंड ही डाइड इन 1627. देन जहांगीर के एम्पायर को अबाउट 16 ईयर्स के लिए नूरजहां ने संभाला था. आफ्टर हिज डेथ शी ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम द कोर्ट. उन्होंने अपनी लाइफ को वहाँ से ख़त्म किया, मतलब 16 साल संभालने के बाद. देन उनके बेटे प्रिंस खुर्रम ने थ्रोन को संभाला और उन्होंने 18 साल जहांगीर के बाद जो था आफ्टर जहांगीर शी डाइड इन 1645. बच्चा दो न्यू वर्ड्स आए. मैरिड मतलब स्पॉइल्ड, बर्बाद कर देना. पायरेसी मतलब शिपिंग रॉबरी ऑन हाई सीज, मतलब सामान इधर से उधर पहुंचाना. रिलेशंस विद द यूरोपियंस. अगर हम यूरोपियंस के साथ रिलेशन की बात करें तो जो डच और इंग्लिश पीपल थे वो इंडिया में आ चुके थे. उन्होंने जहांगीर के थ्रोन को ले लिया था बट दे वर नॉट सो स्ट्रांग. बहुत स्ट्रांग नहीं थे. पोर्टुगीज वांटेड कि उनका सारा ट्रेड जो है वो इंडियन जो है इंडियन शिप लूट चुके थे और किंग इतना ज़्यादा गुस्से थे कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी चीज़ें
क्लियर हो, मतलब लोग समझ पाए। तो वो रिफ्यूज कर देते थे हमेशा, कोई भी ट्रेड रिलेशनशिप होता था। उसी टाइम पीरियड में विलियम हॉकिंस जो इंग्लैंड के पर्सन थे वो आए थे, और वो चाहते थे इंडिया में वो कंसेशन के साथ जहांगीर के साथ वर्क करें, बट वो हार गए और वो वापस चले क्योंकि वो रेडी नहीं थे उनके साथ वर्क करने के लिए। तो देन ही गो बैक। आफ्टर दैट इन 1615 एडी सर थॉमस रोय, बेटा ये एक नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस रोय इंडिया में पहले एम्बेसडर थे जो इंग्लिश किंगडम के थे। ही सक्सीडेड इन सेटिंग द ट्रेड। उन्होंने मुगल्स के साथ फर्स्ट टाइम, ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम मुगल्स के साथ ट्रेडिशन ट्रेड वर्क किया था। एज सर थॉमस रो हैज गॉट द परमिशन टू हैव फैक्ट्री एट सूरत, ही इज द, ये पिक्चर आप उनकी देख सकते हो। देन शाहजहां, शाहजहां लाइक खुर्रम आफ्टर दैट assassinating the throne after defeating शय्यार, नूर जहां वांटेड कि उनका जो थ्रोन है वो शय्यार को किल करने के बाद उनको टाइटल दे दिया गया, मतलब वो थ्रोन पे बैठेंगे, सारी चीजें संभालेंगे, तो उन्हें न्यू नेम दे दिया गया, नेम दिया गया शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब राज, पूरे वर्ल्ड के किंग होने चाहिए। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत बैटल लड़ी। ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, वो चाहते थे कि उनके जो ग्रैंड फादर ने जितनी भी पॉलिसीज मतलब अकबर ने बनाई थी उसको फॉलो की जाए। देन जाजा जुझार सिंह वॉज हैविंग द रिवोल्ट विद अगेंस्ट शाहजहां, एंड बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन दैट रिवोल्ट, वो उस बैटल में नहीं जीत पाए थे। He again revolted in 1635, but then also he was defeated and killed by him. Next campaign was the Deccan campaign, that bring in Ahmedabad, Vizapur, Golconda, and the control was under the Shah Jahan. Then Prince Aurangzeb, Subedar of the Deccan, combined together to annex the Mughal Empire. Bijapur has submitted to the Mughal Emperor in 1636, Golconda 1556 में होते हैं। तो ऐसे इस तरीके से अबाउट 20 लाख का हाई ट्रिब्यूट उन्होंने गिफ्ट में किंग एम्परर को दिया, बिकॉज ही वो नहीं चाहते थे कि मुगल जो है इसको हार जाए ड्यू टू सम रीजंस। तो मराठास बहुत पावरफुल हो क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें एज अ ट्रिब्यूट दे दी थी, जब ट्रिब्यूट देंगे तो ऑब्वियसली वो तो मुगल्स को उन्होंने वीक कर ही दिया, इसी वजह से मराठास और पावरफुल हो गए। देन द लास्ट और सेकेंड लास्ट टॉपिक था शाहजहां एशियन कैंपेन। शाहजहां ने जो कैंपेन की थी सेंट्रल एशिया में वो बहुत हार गए थे, उन्होंने हारे, इसके अलावा उनके बैटल में हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डाइड एट दैट टाइम, बिकॉज दैट time period is of Timur invasions, and he was not successful, or he was not capable to expand his empire, so he was not able, so he has not achieved anything in that campaign. Then the Kandahar expedition, Shah Jahan invited in conquering Kandahar in 1638, as Ali Mardan Khan, who was the governor of Kandahar, वांटेड कि शाहजहां जो हैं वो अनॉय हो चुके थे कि शाह जो पर्शिया के किंग है, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं शाहजहां और पर्शिया के साथ कैप्चर करके कंधार को अपने पावर में ले लूं। इन 1649 80 शाहजहां ने अपना बेस्ट दिया उसको लड़ने के लिए, बट एट द लास्ट मुगल्स लॉस्ट कंधार फ्रॉम, एज दे वेन कंधार was lost from mughals forever. By this, we had reached to the end of the module. In part 4, we'll discuss about relations with the Europeans. Thanks for watching. God bless you all. Hope you all are doing well at home.